ओके, तो बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. So second year, Bachelor of Commerce, Accounting and Finance. In short, we pronounce it SY BAF. Here is the both semester the syllabus is listed in this file, semester 3 and semester 4. It is comes under the choice based credit grading and system. In short, we pronounce it CBCGS. CBCGS. Okay, and syllabus has been changed since 2017-18. Okay, here is the all 7 subject. I think you people are aware about that foundation course and financial accounting cost sorry, auditing and taxation. In list of elective courses we are offering 3 subject: financial accounting, auditing and taxation. Next, in skill enhancement course we offer 1 subject, that is the foundation course in commerce. Okay, FC in commerce, we pronounce in shortcut FC in commerce. Okay, or we pronounce it financial market operation, FMO. Okay, and here is the business law and business economics. Now we will deal with the financial accounting. Okay, module at glance. Here is the summarized syllabus of financial accounting, special accounting area 3. Okay, why it is written in 3? Here is 3 because in semester 1 financial accounting 1, in semester 2 financial accounting 2, and now here is the semester 3. That's why it is listed the financial accounting, yeah, special accounting area 3. Here is the module at glance. 1, 2, 3, 4, 5, 5 module are there. Basically all are related to the firms. Okay, and first one is the partnership final account based on adjustment of admission, retirement, death of a partner during the year. Okay, I think we already discussed in the breeze course sole partnership, sole traders accounts and basic accounting terminology. ठीक है. Now we will start with the first chapter, partnership final accounts based on adjustment of admission or retirement. ठीक है, after discussing the whole syllabus. Okay, and next module is the piecemeal distribution of cash and amalgamation of firms, and fourth one is the conversion sale of partnership firm into a limited company, then accounting of transaction of foreign currency. ठीक है, these are the 5 modules, and already university has given the number of lectures for each module. Okay, in first module 15 lectures, then piecemeal distribution for 10 lectures, amalgamation of firms 15 lectures, conversion or sale of a partnership firm into a limited company is 10, then accounting of transaction of foreign currency is 10. Total we have to cover all these syllabus in 60 lectures. Okay, oh, here is the detailed syllabus. Okay, according to the module, first module partnership final account based on adjustment of admission or retirement, death of partner during the year. ऑलरेडी आपने यहाँ पे इसको 12th स्टैंडर्ड में आई थिंक सीखा होगा. इस सिलेबस में है. बेसिक एडजस्टमेंट था, सिंपल एंट्रीज था. ओके, डिसोल्यूशन वाला जैसा पार्ट हो गया, या तो फिर एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें वहाँ पे थी. ओके, यहाँ पे बेसिकली आपको नया क्या चीजें होगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट जो रहेगा थोड़ा डिफरेंट रहेगा. ठीक है, बेसिकली 12th स्टैंडर्ड में जो एडमिशन रिटायरमेंट डेट होता था एक पर्टिकुलर डेट पे होता था, या तो ईयर ऑफ द एंडिंग दिखा देते थे या तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो वहां पे कॉलमनर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता था. यहाँ पे हमें क्या है, कॉलमनर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा. अब ऐसा नहीं है कि जो भी पार्टनर एडमिट हुआ है, चलो एडमिट होने को तो हो सकता है क्या, 1 अप्रैल को हो जाएगा. ठीक है, 1 अप्रैल को हो जाएगा, या 31 मार्च को रिटायर हो जाएगा. ओके, लेकिन अगर डेथ होता है तो ऐसा थोड़ी है कि उसका डेट हमें बता देंगे कि यहाँ 1 अप्रैल को ही इसका डेथ होने वाला है, ऐसा तो है नहीं. तो बीच में जब भी डेथ होगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कॉलमनर प्रॉफिट एंड लॉस हमें बनाना पड़ेगा. ओके, तो थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट डिफरेंट रहेंगे.
एंड हियर इज गिवन डिटेल सिलेबस में आप लोग एक बार रीड आउट कर लोगे, पढ़ लोगे। कुछ सारे फेमिलियर्स वर्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग अलग है, नाम भी है बस, खाली जब हम कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हाँ ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग क्वेश्चंस वेयर एडमिशन रिटायरमेंट डेट टेक प्लेस इन द सेम ईयर। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग क्वेश्चन जैसे सेम ईयर मैंने बोला था ना, कि अगर सपोज बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर ऐसा होता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ईयर मतलब अगर ऐसा है कि डिफरेंट मंथ्स में हो सकता है ऐसा। ओके, जैसे अपना फाइनेंशियल ईयर 2015-16 ऐसा रहता है, तो 15 में एडमिशन या तो 16 में रिटायरमेंट, ऐसा अलग अलग रहेंगे। कॉलमनर फॉर्मेट में वी हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड आई थिंक पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड में आप बनाते थे क्या, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट जूनियर कॉलेज में ऐसा बनता था कि डायरेक्ट एंट्री करते थे, बैलेंस शीट में डायरेक्ट एंट्री करते थे? ओके ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट आता है सिलेबस में पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, बेसिकली जब क्या होती है, फॉर्म्स जो है जब डिसॉल्व हो जाता है, फॉर्म क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, और उसकी लायबिलिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है असेट से, तो फर्म को क्या करना, बेसिकली उसको बंद करना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है। तो उसके जो असेट्स हैं बेच करके पार्टनर्स को, ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर उनको पेमेंट करना है। तो पेमेंट कैसे करना है, कब कब करना है, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में। ओके, इसमें मेथड बताया, एक्सेस कैपिटल मेथड ओनली, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर एंड मैक्सिमम लॉस मेथड, मेथड आपको कंसीडर नहीं करना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और इस सेमेस्टर में। सिर्फ एक ही मेथड आपको फॉलो करना है, एक्सेस कैपिटल मेथड, याद रहेगा आपको, नोट डाउन करके चाहिए तो रख लेना आप। ये वाला है एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडिंग लिखा है। आगे है एमलगेशन ऑफ फॉर्म। अमलगेशन मीन्स क्या, कॉम्बिनेशन, मर्जर हम बोलते हैं। दो फॉर्म को अगर एक साथ में मिला देते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं, ठीक है, उसका परचेज कंडीशन बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सारी चीजें उसमें रहने वाली है। ओके, फर्म और दो फर्म कंबाइन हो गया, एक सोल ट्रेडर हो गया, एक पार्टनरशिप फर्म हो गया, कंबाइन करना है। लेकिन यहाँ पे कंपनी वर्ड नहीं है, आप ध्यान में रखना, सिर्फ फर्म को ही क्या करना है, यहाँ पे मर्ज करना है, कंपनी नहीं। कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, उसको मर्ज करने के लिए 2-3 साल लग जाते हैं। बैंक देखो, अभी हमने जैसा कि ब्रिज कोर्स में आई थिंक भी डिस्कस किया था कि अभी बहुत सारे बैंक को क्या है, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के जो बैंक थे उनको मर्ज किया है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट देखो, आईएफसी कोड अगर जिसका भी रहेगा तभी उसका मैसेज आता है कि पुराना वाला आईएफसी कोड भूल जाओ और नया वाला आईएफसी कोड 1 जुलाई से आप क्या करो, यूज करोगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे अकाउंट होल्डर को मैसेज आता है, अगर आप लोग का भी अगर सपोज देना बैंक में या विजया बैंक में या तो कारपोरेशन बैंक में अकाउंट रहा होगा तो उसके लिए मैसेज आता है, या आपके अकाउंट में क्या क्या है, वो बेनिफिशियरी को ऐड किया है तो उसका आईएफसी कोड पुराना था, अभी नया आईएफसी कोड उन्होंने डाला है। ओके, आईएफसी। नेक्स्ट क्या आता है, नंबर 4, कन्वर्जन सेल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इनटू ए लिमिटेड कंपनी। पार्टनरशिप फर्म है, उसको लिमिटेड कंपनी में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो रियलाइजेशन मेथड ओनली, देखो यहाँ पे भी एक मेंशन किया है, सिर्फ एक ही मेथड है फॉलो करना, रियलाइजेशन मेथड। कैलकुलेशन ऑफ न्यू परचेज कंसिडरेशन, ये है मेथड में आपको ये पहले कैलकुलेट करना, जनरल एंट्री पास करनी है, लेजर बनाने हैं, ठीक है, ओल्ड फर्म्स के, फिर नए नए जो कंपनी बन जाएगी उसका बैलेंस शीट बना देना, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी।
ओके, नेक्स्ट आता अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब आप कहीं सपोज दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हो, इंडिया का है होम कंट्री हो गया। अब इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री, मतलब देश, ऐसा राज्य नहीं बोल रहे हैं हम लोग, हाँ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी ऐसा मेंशन नहीं कर रहे हैं। होम कंट्री में सारी चीजें आती है, ठीक है। हाँ, फॉरेन कंट्री में भी आती है लेकिन वहां पे, ठीक है, फॉरेन वर्ड आ जाता है। अभी जैसे है अपना इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, ठीक है, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे कंट्री के साथ आप ट्रेड करते हो तो क्योंकि कंट्री का, वहाँ का कंट्री का जो करेंसी अलग है, यहाँ के कंट्री का करेंसी अलग है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या, जैसे अभी श्रीलंकन रुपीज हो गया या इंडियन रुपीज हो गया, तो दोनों में डिफरेंसेस है। श्रीलंका से कोई इंडिविजुअल यहाँ पे आता है तो उसकी कीमत कितनी है, 1 रुपये 2 रुपए की। या इंडिया का 1 रुपए का कीमत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भूटान में कितना है, या नेपाल में कितना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेपाली नेशनल्स यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए इंडिया में, तो यहाँ पे जो उनको सैलरी मिलती है इंडियन रुपीज में मिलती है, अभी नेपाल में लेके जाते हैं तो उनका वहाँ कन्वर्जन कर लेते हैं, ऐसा चीजें रहती है। ओके, तो उसमें हमारा बिजनेस से रिलेटेड हो जाएगा, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और लोन लेना लोन देना ऐसा भी होता है, तो उसको हमें रिकॉर्ड कैसे करने हैं। तो ठीक है, टोटल है 5 यूनिट्स है, 5 मॉड्यूल है, थोड़ा लेंदी सिलेबस है। ओके, बहुत सारे इसमें, सारे सब प्रैक्टिकल ही है। इसमें जितना सम हम लोग कर लेते हैं उतना कम ही रहता है। तो बेसिकली आपको जो भी मिलता है सम होमवर्क करके आओगे और मिस नहीं करोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है। और एडजस्टमेंट अगर आपको पता है, ट्रीटमेंट अगर पता है, तो उसका आप ऑब्जेक्टिव मोड में ही अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलता है। ओपन इंडेड क्वेश्चन नहीं होता, क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से ही आपको सेलेक्ट करना है। और ऐसा थियोरेटिकल होता है तो आपको थोड़ा जो भी नॉलेज है उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपना ओन वर्ड में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये लोग ना एफए के नोटबुक में सिलेबस के लिए 2 पेज, ठीक है, ब्लैंक रखोगे और इसको नोट डाउन करके रख लोगे कि इसमें हमने क्या क्या कवर किया है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कोई भी बुक रेफर्स कर सकते हो, कोई रेफरेंस बुक हो गया, पब्लिशर का बुक हो गया। ओके, और यहाँ से आपको, हमें क्वेश्चंस और आंसर्स आपको मिल जाएंगे, उसके जो है नोट्स भी मिल जाएंगे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, आप नोट डाउन करोगे। अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए, ठीक है, तो कोई भी पब्लिशर का, जैसे नॉर्मली यहाँ पे मिलता है सेट पब्लिशर, मनन पब्लिशर का जो बुक होता है आप रेफर्स कर लोगे। रेफरेंस के लिए भी बहुत सारी बुक है मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये बेसिकली आप ये देखोगे कि ये जो कंटेंट है यही कंटेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस हो गया आपको आइडिया, टोटल कितने यूनिट्स हैं, टोटल कितने यूनिट्स हैं, या मॉड्यूल हम लोग बोलेंगे 5 है, ठीक है। टोटल 5। फर्स्ट मॉड्यूल का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, वेरी गुड। सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ओके। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा लाइटली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है।
देखते हैं हम इसको कितना फास्ट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, सॉरी पार्टनरशिप अकाउंट नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म लिख देते हैं। चलो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म फाइनल अकाउंट। ओके, ये प्रॉपर वर्ड हो गया। तो बेसिकली वो पार्टनरशिप क्या होता है हमने डिस्कस किया था। पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, क्या होता है इसमें? ठीक है, टू और मोर पर्सन, ओके, टू और more person agree to share the profit of business carried on by all any one of them। ठीक है, टू और more person agree to share their profit and losses, ठीक है, run by all or any of them acting for all। ठीक है, तो पार्टनरशिप इसको ही हम बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया, पार्टनरशिप डिड जो होता है, पार्टनरशिप अलग और पार्टनरशिप डिड अलग रहेगा। पार्टनरशिप डिड बेसिकली क्या होता है? पार्टनरशिप डिड एग्रीमेंट। यस, ओके। कैसा, ओरल ओरल एग्रीमेंट बोलेंगे या रिटन एग्रीमेंट? रिटन एग्रीमेंट। ओके, वेरी गुड। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो, रिटेन एग्रीमेंट। रिटेन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डेन। अब रिलेटेड टू क्या रहेगा, बिजनेस से ही है, पार्टनरशिप से रहेगा कि कौन कितना काम करेगा, उसका राइट्स, ड्यूटी, इंटरेस्ट, ड्राइंग, एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें रहेगा। बिजनेस को कैसे रन करना है, पर्सनल चीजें से कुछ भी रिलेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड रहेगा। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, इन्वायरमेंट दोनों यहाँ पे ऐड रहेंगे। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंट जो होता है, पार्टनर्स अकाउंट, जो पार्टनर्स अकाउंट होता है हम उसको कैसे मेंटेन करते हैं? फिक्स्ड या तो फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो मेथड हम फॉलो करते हैं पार्टनरशिप, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए। ओके, पार्टनर्स अकाउंट जो होता है उसको हमें मेंटेन करने के लिए हम दो मेथड फॉलो करते हैं। एक होता है फिक्स्ड, यस, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या रहेगा? व्हाट विल बी इन फिक्स कैपिटल? दोनों में डिफरेंसेस क्या है? यस, एनीवन, एनी आइडिया? दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंसेस है? ओके, आई थिंक एवरीवन इज साइलेंट, सो यू हैव नो एनी आइडिया। सो फिक्स कैपिटल मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है, ओके, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो होता है उसको अलग बनाते हैं, एंड जो करंट अकाउंट होता है उसको अलग बनाते हैं। करंट, जिसे नाम से ही पता चल रहा है, क्या, करंट अकाउंट, मतलब पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का वो रहना चाहिए। ओके, जैसे 17, 18, 18, 19 में कितना खर्चा हुआ, कितना सैलरी मिला, कितना इंटरेस्ट मिला, ओके, कितना उसको प्रॉफिट का मतलब शेयर कितना मिला, ये सारी चीजें किसमें, करंट अकाउंट में रहेगा। करंट से, करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। और यहाँ पे जो पार्टनर्स में क्या रहेगा, ये जो इसका कैपिटल जो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा।
कैपिटल कैसे फिक्स, मतलब जैसे अगर सपोज उसने क्या किया, कोई एक पार्टनर 1 लाख का कैपिटल लेके आया है, तो अगर कैपिटल में और ना कुछ इसने क्या किया है, ना फ्रेश कैपिटल कुछ लेके आया है और ना इसमें से कुछ क्या किया है, विड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये इतना ही रहेगा, फिक्स रहने वाला है ये। ओके, अगर फ्रेश कैपिटल इसमें लेके आया तो प्लस इसमें 10,000 और ऐड कर देंगे, तो और यहाँ पे जो जाएगा, ठीक है, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, ये सारी चीजें इसमें आने लगेगी। तो बेसिकली ये डिफरेंसेस है। कैपिटल जो मेन कैपिटल है, जैसे हमें देखते हैं ना, हमारा ट्रायल बैलेंस रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा ए का कैपिटल इतना है, बी का कैपिटल इतना है, सी का कैपिटल इतना है, तो हमें वो क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। और एडजस्टमेंट में कहीं लिखा रहेगा कि क्या है, कि मिस्टर ए ब्रॉड द कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000, जो भी है उसमें फिर हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, फिर उसमें टोटल कर देंगे, बाकी कुछ उसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे। ओके, बाकी जो करेंट एक्सपेंसेस या इनकम्स रहेगा रिलेटेड टू, ठीक है, पार्टनर्स, हम उसको क्या करेंगे, करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि कैपिटल प्लस करेंट अकाउंट दोनों साथ में आ जाता है, कैपिटल प्लस करेंट अकाउंट साथ में आता है, ऐसे अलग अलग नहीं आता है। यहाँ पे समझो ये नंबर 1 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये नंबर 2 हो जाता है। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करते हैं, दोनों कंबाइन कर देते हैं, दोनों कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पेमेंट टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को क्या क्या पेमेंट देंगे हम, बेसिकली क्या देते हैं उसको, पार्टनर्स किस तरह से पेमेंट लेके जाता है। यस, फटाफट बोलते जाओ, हाँ अनम्यूट करके भी बोलोगे चलेगा, ऐसा नहीं है, पार्टिसिपेट होना चाहिए आप लोगों को। पेमेंट टू पार्टनर, अगर आप सपोज बिजनेस में, किसी बिजनेस में आप पार्टनर हो, ठीक है, जैसे आपने SY कर लिया, TY कर लिया, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करनी है, ठीक है, पिज्जा हट के जैसा आपको क्या करना, आपको ये बिजनेस आउटलेट खोलना है। हाँ, SY बैफ में पढ़ते पढ़ते, TY बैफ में पढ़ते पढ़ते, हाँ, फ्रेंड हो गए, 3-4 जन मिल के क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। तो हम पार्टनर्स, जो बिजनेस में पार्टनर है, उनको हम क्या क्या दे सकते हैं ऐसा। यस, बोलो, एनी आइडिया, नो आइडिया। अरे भाई आप पार्टनर हो, हाँ, बिजनेस में अगर आप पार्टनर हो तो आपको क्या चाहिए। अरे वेरी गुड, हाँ, ये तो सिंपल चीज है, पहला तो प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए ना, बाकी कुछ मिले या ना मिले। यस, ठीक है, क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट भी होगा तो भी शेयर करना है, लॉस भी शेयर करना है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ में लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स को ये दोनों देना ही देना है, इक्वल शेयर नहीं, इक्वल शेयर नहीं, किसके अकॉर्डिंग हमको जाना है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जाना है। अगर सपोज इक्वल कैपिटल है तो इक्वल दो सकते हो, नहीं तो एग्रीमेंट होगा। कोई कोई क्या करेगा, कैपिटल ला, हाँ, फॉर्म में लेके आ जाएगा, बोलेगा ठीक है काम तुम करो, हम तुमको 10% ज्यादा देंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा होगा। यस, तो उस चीजें के बारे में देखेंगे कैसा है, इक्वल है या प्रोपोर्शनल है। ओके, ये सारी चीजें हम रहेगा, पार्टनरशिप फॉर्म वही तो रिटन एग्रीमेंट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल देना है कि प्रोपोर्शनेट देना है, कैपिटल या तो कुछ अलग से स्पेसिफाइड रेशियो में देना है, ये सारी चीजें रहेगा आपको किसमें, पार्टनरशिप डिड में। और ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे उसका अकाउंट्स, तो एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं वो लिखा रहेगा। ओके, आगे क्या दे सकते हैं,
जनरल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस क्यों देंगे भाई उसको, वो तो बिजनेस का रहेगा ना। ओके ठीक है, नहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, पार्टिसिपेट करेंगे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। राइट रॉन्ग तो ये क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ ओके, ड्राइंग वेरी गुड। पार्टनर्स ने क्या किया, ड्राइंग किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब उसको चार्ज करना पड़ेगा। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो हम ही लिस्ट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, सैलरी एंड कमीशन। ये जो आप बोल रहे हैं शेयर इन गुडविल, जब वो क्या है रिटायर होगा या आएगा तब उसको हम देंगे, शेयर इन गुडविल। यस रजनीश, ठीक है, जब वो पार्टनरशिप से रिटायर हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, वो गुडविल क्रिएट का देखेंगे, उसका वैल्यू कितना है, फिर उसको हम शेयर देंगे। और बेसिकली ये जो पेमेंट टू पार्टनर्स है यहाँ एवरी ईयर ये होता ही रहेगा। यस, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्योर्ड लोन, ठीक है, वो तो फर्म के लिए लोन लेके आया है, अगर सपोज पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो एज ए पार्टनर उसको इंटरेस्ट नहीं, एज ए क्या हो जाएगा, एज ए क्रेडिटर, वो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है फर्म को, लोन दे रहा है तो उसका इंटरेस्ट उसको अलग से मिलेगा। कैपिटल उसने लेके आया तो उसको इंटरेस्ट अलग से मिलेगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ कि ये बी सी है सब 1 लाख रुपीज लेके आएंगे, फर्म को और चाहिए 2 lakhs, तो अगर सपोज कोई पार्टनर के पास एक्सेस फंड है, ठीक है, तो बोलेगा कि हाँ मैं देता हूं, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, कहीं बैंक से लेने से अच्छा है, किसी और से लेने से अच्छा है, मेरे पास है मैं और देता हूं और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन, अगर कोई पार्टनर्स ठीक है एक्स्ट्रा काम करता है उसको हम कमीशन दे देते हैं, या कुछ सैलरी दे सकते हैं ऐसा, ये सारी चीजें उसमें रहेगी। सैलरी दिया, कमीशन दिया, तो पार्टनर्स को अकाउंट्स में ऐड ऑन कर लेना। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि है सिक्योर्ड लोन आपने लिखा था ना, रोल नंबर 13। यस, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। हाँ ये सारी चीजें आप ठीक है नोट डाउन करते जाओगे, नोट्स बनाना मतलब यही चीजें हैं। ओके, पेन पेंसिल आप अपना नोटबुक लेके बैठो और ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहोगे। ठीक है, तो बेसिकली जो क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्या है पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो हमने नाम लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। सॉरी, अब इसमें हम लोग और कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक वर्ड आता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है, ओके, तो इसको बेसिकली हम कहाँ पे लिखते हैं, इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहाँ पे लिखते हैं इसको।
और ये बेसिकली क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड जो होता है उसमें मेंशन होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसका रेट क्या होगा? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा? बेसिकली ये कहाँ पे मेंशन होता है? पार्टनरशिप डीड पे। अगर ऐसा बोलता है कि क्या है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो बेसिकली हम कितना परसेंट कंसीडर करते हैं? 6%। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको पहले कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। और कहाँ पे इसको लिखते हैं? ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किधर? क्रेडिट साइड में। एक डेबिट में आएगा तो दूसरा किधर आएगा? क्रेडिट में, एज पर डबल एंट्री सिस्टम। कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको हम? ओके, कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा देखेंगे, पहला हमें ये देखना पड़ेगा रेट। रेट किस में है? परसेंटेज में। देन अमाउंट देखेंगे, कितना अमाउंट है? अमाउंट किस में रहेगा? रुपीज में। और दूसरा क्या देखेंगे? पीरियड या ड्यूरेशन। पीरियड। और बेसिकली किस में देखेंगे? मंथ में देखेंगे, कितना मंथ्स के लिए उसको देना है। MONTH मंथ्स। चलो यस, मंथ्स। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो। इसके यहाँ पे भी लिख देते हैं, चलो। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप ये तीन चीजें ध्यान में रखोगे। ठीक है, तीन चीजें ध्यान में रखोगे। रेट जो है क्या है, ये भी आप देखोगे किस में है, पर एनम है कि पर, नॉर्मली पर एनम ही रहता है, ध्यान में रखोगे। ये रेट किस में रहेगा? पर एनम। पर एनम। तो तीन चीज आपको कैलकुलेट करना में भी, इंटरेस्ट क्या हो गया? एज एग्जाम्पल 10% हो गया, अमाउंट 25,000 हो गया, मंथ हो गया 5। तो इसका कितना आएगा कैलकुलेशन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो। 12,500। हे राम, तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा बिजनेस डूब जाएगा। 25 का आधा कितना होता है? 12.5। 50, 50%, वो भी पूरे साल का। 25,000 है। वो देखो, यस, घाई नहीं मचाने का अकाउंट्स में। कैसे कैलकुलेट करना है? 10% इंटू 25,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो इसको हम अगर करते हैं 25,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई, सॉरी, इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 1042। एक्सेल ने कैलकुलेट करके आपको बता दिया। ब्रिज कोर्स में हमने देखा था ना, सिंपल जो है फॉर्मूला आपको अप्लाई करने के लिए। तो थोड़ा मोड़ा एक्सेल सीट इसके लिए हमें यूज होती है। हाँ, अगर हमें इसको क्या करना है, 2 डेसिमल तक देखना है, तो क्या करेंगे? .2
डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज करना है तो कैसे करेंगे? डेसिमल डिक्रीज, डेसिमल इंक्रीज, यस, ठीक है। जनरल के नीचे जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 1041.67। ओके, अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं तो ये आ जा रहा है एरर। एरर आ रहा है कि ऐसे आएगा, देखते हैं। हाँ, ये एरर आ रहा है, कैसे सॉल्व होगा? नहीं, बरोबर आ रहा है ये। लगता है वो दूसरे फॉर्मूले में रहेगा। चलो ठीक है, हम उस पे जाने वाले नहीं, एक्सेल नहीं सीख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको कैलकुलेट करने को समझा क्या? क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके बेसिस पे हमको क्या करना है, ये तीन चीजें तो पहले ढूंढनी है। रेट कितना है, अमाउंट कितना है, पीरियड कितना है, ड्यूरेशन, 5 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये लिखोगे और उसके बाद फिर अगर 12 मंथ्स है तो 12/12 कर लोगे, 6 मंथ है तो 6/12, 3 मंथ्स है तो 3/12। अगर 12 मंथ्स है तो डायरेक्ट 10% करके 12/12 मतलब 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आने वाला, कुछ मतलब नहीं है। कॉमन सेंस है सारी चीजें, ठीक है। आप SY बैप में वो भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहे हो, ठीक है, याद रहेगा। सॉरी, तो ऐसे आपको ये डिटेल, ऐसा शॉर्टकट में नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा कि मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर हरिश्चंद्र इंट्रोड्यूस्ड ए कैपिटल ऑन सो एंड सो डेट अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर एंडिंग डेट सो एंड सो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग, तो स्टेटमेंट रीड आउट करना है, नोट डाउन करना है और फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। आगे बेसिकली ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू है कि एक्सपेंसेस है? यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए? हाँ, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी गुड। ये क्या है, एक्सपेंसेस है। और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस है और ये क्या है, रेवेन्यू है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे आएगा? रिवर्स, प्रॉफिट एंड लॉस के किधर, सेम लिखेंगे, कुछ उल्टा आने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर आ जाएगा ये? क्रेडिट में। और पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल में किधर, डेबिट में। लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। इसका कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसके लिए मेरे पास एक सीट है, वेट।
Yes, I know. ओके, यहाँ पे आपको एक ना क्वेश्चन दिख रहा है, और क्वेश्चन मैं देख रहा था जिसके लिए वो स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा था। ये आप क्वेश्चन लिख लोगे तो फटाफट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आई थिंक ये पार्ट आपको विजिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, 5 केसेस है, ए बी सी डी ई एफ। अभी विजिबल है ना सबको? Yes, sir. हाँ, ओके, नोट डाउन कर रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास पेन पेंसिल नोटबुक फिलहाल नहीं है। अकाउंट्स जी ठीक है, आप जब करते हो बैठ रहे हो लेक्चर के लिए तो पेन पेंसिल रबड़ हाँ कैल्सी नोटबुक सब लेके बैठोगे। यस होने के बाद बोलोगे डन। क्या स्क्रीनशॉट लिया कि नोट डाउन किया? हम्म, ठीक है, जो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं नोटबुक में लिख के रखोगे। हाँ, नहीं तो सब कुछ डिजिटल मीडिया में ही रह जाएगा ये। हाँ, गूगल पे यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं है और दिमाग में आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये किसी हाँ गैलरी के किसी फाइल में रह जाएगा स्क्रीनशॉट, डेटेड क्या 9 जुलाई 2021। ओके, बाकी लोग जिन जो हाँ नोट डाउन करे वो हो गया क्या? नो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? अच्छा, नोट डाउन कर लो, फिर अटेंडेंस ले लेते हैं क्योंकि ये पांचों से हमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, कितने लाइन का क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है और एक एक लाइन में ही आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन देखो कैसे आता है। छोटा क्वेश्चन कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन पता है तो आप उसका राइट आंसर लिख सकते हो। आई थिंक आपको स्क्रीन दिखेगा, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। 1 मिनट, मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ, मैं भी दिखना तो चाहिए।
स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस। हाँ। चलो ठीक है, लिखते भी रहो और साथ में अटेंडेंस भी देते रहो। रोल नंबर 3। वंशिका। ओके, रोल नंबर 9, सुयोग, 10, सीमा, 11, 13, यश 16, ओके 16, Yes, sir, present. 20, who is 20? गौरव भगवान प्रेजेंट है? नो। 22, Sir, 21. ओके 21, 22, 24, Present, sir. 27, नाम अनाउंस करोगे सब? हाँ। 28, शिवानी, 29, तुषार 31, Fiza. 33, रेडी रहो सब फटाफट। 34, Divya. 36, 40, Sir, 36 Sonam. हाँ हो गया हो गया। ऐसा कंफर्मेशन नहीं दोगे, लास्ट में आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज 40 के बाद 43, 40 ज्योति, 44, मयूरी, 46, Priyanka. 47, Sanskruti. 49, प्रणोति, 53, Aishwarya. 60। कहाँ है आदेश? आदेश, कहाँ गायब हो जा रहे? पहले ज्वाइन होता है, तुम गायब नहीं हो। नेक्स्ट 5, अनुज 8, Mansi. 9, चंदा, 10, 11, सूरज 12, 15, Priyanka. तेजस, 18, बिरंची, 21, सात्विक, 22, 22, रविंद्र नहीं, रसिका, रसिका इज नॉट देयर। नेक्स्ट इज 22, हो गया 23, ओमकार, ओमकार, ओके 24, Sonali. 29, रजनीश, 30, निखिल 35, Anita. 36, Surbi. 37, श्वेता, 38, नम्रता, 40, प्रतीक 41, शिवानी, 42, Lakshmi. 43, Ashbiya. ये कौन है? चिन्मय। Yes, sir. कितना रोल नंबर है? Sir, new admission है. ओके, न्यू एडमिशन। सो आपको लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं, अभी रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है? तो 7144 पे आप अनाउंसमेंट करोगे। Okay. 101 चिन्मयी। ओके, और किसी का लेफ्ट हुआ है अटेंडेंस? 7027. Muskan. हाँ, वापस। हाँ, 7027. 7027। 7011 यश 7011 यश ये तो सब, ये सब लोग प्रेजेंट है। हाँ, मोबाइल इधर उधर रख के बैठोगे फिर ऐसा ही आ जाएगा अटेंडेंस में।